welcome back to the part 3 of Q&A based series. Without wasting our time, let's get started. Next question is how to prepare art and culture, and you want to know the name of the book, NCERT textbook for art and culture, which I used. As you can see on the screen, I have added these two books which I read during my time. It is from NCERT, and I have taken this screenshot from Amazon app. You can also go there. Before that, you can take this screenshot from here, and you can zoom and you can see the details. I am a person who do not like thick books. Psychologically, something affects me whenever I see thick books. So you can make a guess. So it's a very thin book, Art and Culture. It's a very thin book, and I think both of these books are suffice. It will suffice your preparation. If you want to read more in depth, then there are enough books. But I have read only these two. Many of you have requested me to show my face in the video while recording. But on this, I want to say, I don't think it's needed right now, because the whole idea is to interact with you all and responding to the queries and motivate you all. This is my concern now. And I am also not very comfortable showing my face while recording, because I don't know what kind of expressions I will be giving while recording. So I'm on a safer side. But yes, in future, if my number of subscribers reaches 1000, then probably I'll start to think about it. And वैसे भी it's just a start. अभी बहुत आगे बहुत डिस्कशन बाकी है. फॉर एग्जाम्पल व्हेन प्रीलिम इज़ वेरी नियर, फिर आप प्रीलिम की बात में वी विल डिस्कस अबाउट मेंस समय में वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन मेंस टाइम होगा, फिर देन इंटरव्यू समय होगा. तो लाइफ जर्नी इज़ वेरी long, so it's a initial period. Let's see how it goes, but for now I am not that comfortable showing my face. और वैसे भी मेरा फेस छुपा के तो हम नहीं रखा है. You can see my beautiful chirpy face in my social media accounts like Instagram, Facebook. It's not private. You can see me there. And also in the first introductory video, I did reveal my face there. So आप इतना दुखी मत होइए आप लोग. It's fine. चलो, I was just kidding. Okay, let's get on with the next question. अगला सवाल है कि क्या मैंने प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन पेपर को चेकआउट किया था. आंसर इज येस एंड ऑल्सो नो. ड्यूरिंग माई टाइम प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन था ही नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम उस पैटर्न में कंडक्ट करवाया जा रहा था. पैटर्न लाइक आई सेड कि यूपीसी पैटर्न में करवा रहा था, पुराना वाला को स्क्रैप कर दिया था. तो कोई फर्स्ट टाइम ही ऐसा कंडक्ट हो रहा है, तो पुराना कोई क्वेश्चन पेपर को रेफ़र करके फ़ायदा नहीं है. क्योंकि पहले वाला जो क्वेश्चन पेपर था ना, वो हमें 5 मार्क्स 2 मार्क्स 10 मार्क्स ऐसे वाला आता था. लेकिन इस बार तो पूरा यूपीएससी में था. तो देन व्हाट आई डिड कि हम क्वेश्चन पेपर लास्ट जो 5 साल का यूपीएससी का जो क्वेश्चन पेपर था, हम वहाँ का रेफ़र किया है. ऑब्वियसली 5 इयर्स का, वो भी पैटर्न को देखने के लिए, क्योंकि यू हैव टू रेफ़र. आपको पता चलना है कि कितना मार्क, मतलब क्वेश्चंस कितना है, कितना लिख सकता है आप उसमें, क्वेश्चन नंबर्स कितना है, किस पैटर्न में आता है. ये आपको जानने के बाद ही आप स्ट्रेटेजाइज कर पाओगे. तो कोई सवाल ही नहीं है. इस लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है, आई थिंक इट शुड बी अवेलेबल ऑन कमीशंस वेबसाइट. आप वहाँ से वो डाउनलोड कीजिए, क्योंकि 1 साल का ही होगा क्वेश्चन पेपर, बिकॉज एक बार ही कंडक्ट हुआ है इस पैटर्न में. बट यू शुड रेफर यूपीएससी's लास्ट 5 years प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वहाँ पे आप देखिए, जानिए क्या है, स्ट्रेटेजाइज करिए. नेक्स्ट इज सेपरेट वीडियो फॉर राज्यसभा चैनल. Probably many of you do not know that राज्यसभा चैनल का जो नाम चेंज होके संसद टीवी हो गया है अभी. तो as you can see on the screen, मैंने ये I have taken the screenshot. ये चैनल को जाके आप फॉलो कर सकते हैं. दिस इज़ द न्यू राज्यसभा. उसके बाद में आई विल ऑल्सो लिंक
I will copy the link in my description of this channel. If you have more confusion, then you can go there and click and visit the channel. Is 3 months enough for mains preparation? See, मेंस का जो प्रिपरेशन आपका प्रीलिम का रिजल्ट के बाद में जो 3 मंथ्स दिया जाता है प्रिपरेशन के लिए, वो मेंस का प्रिपरेशन बोल के नहीं है. वो इन दोज 3 मंथ्स यू हैव टू रिवाइज व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड. वो रिवीजन के लिए होता है वो 3 मंथ्स जो मेंस का. बिकॉज उसमें आप सोचिए इतना वास्ट है. आपका जनरल स्टडीज़ है, देन आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, देन योर ऑप्शनल इज देयर. तो वो चीज़ होता है वहाँ पे. तो इफ़ यू आर थिंकिंग कि 3 मंथ्स में मेंस को कवर कर पाएगा, डिफरेंट पीपल हैव अलग अलग कैपेसिटी होता है सबका. सो फॉर मी तो आई डोंट थिंक सो इट इज़ पॉसिबल. बट येस, देयर आर केसेस वेयर पीपल हैव क्लियर्ड UPSC ऑल्सो एंड APPSC मेंस को 3 मंथ्स में प्रिपेयर करके. अभी फॉर मी इट्स नॉट एन आइडियल थिंग टू डू सो, क्योंकि 3 months any aspirant who is serious, तो आई डोंट थिंक सो 3 months में प्रिपेयर करने के लिए भी सोचना चाहिए. आई मीन मेंस के लिए that is for revision only. But like I said, there are cases where people have cleared. Next question is how my ideal routine looked like when I was preparing. First of all, I want to say I am a person who cannot study in the night. Like I am a morning person. I know कि after dinner तो maximum रात को मेरा जो होता था कि I will after dinner around 8:39 I will be sleeping and I will be waking up at from 3 a.m. or something. Like my friends who were preparing with me in my hostel also, we all were preparing for mains together. My friends also knows that I sleep before 9 is also ज़्यादा ही लंबा हो गया. तो उसके बाद में but I will wake up around sometimes 2:30 3 a.m. in the morning, and from there I will start. उसके बाद पे सुबह पढ़ेगा. Then I'm talking about this one मेंस के बीच में जो टाइम था ना 3 months का वाला आफ्टर प्रीलिम्स रिजल्ट, उस समय का मैं बता रही हूँ. तो सुबह 3 बजे ऐसा को आई विल वेक अप. वहाँ पे मेरा चाय शुरू हो जाएगा पीना. देन वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पढ़ने के लिए टिल ब्रेकफास्ट में. ब्रेकफास्ट आई यूज टू हैव अराउंड 8:30 और समथिंग लाइक दैट उसमें. देन आफ्टर देन अगेन आई विल स्टडी. उसके बाद लंच होगा मेरा. लंच के बाद में आई मेड श्योर कि आई विल स्लीप. तो 2 घंटा जैसा फिर से हम सो जाता था. और जो माई रूम वॉज ऑन द टॉप फ्लोर, तो छत में आई यूज टू लाइक टेक अ वॉक. वहाँ पे से राउंड करके आई एम थोड़ा सा फिजिकल मूवमेंट के लिए आई यूज टू डू. उतने के बाद में आफ्टर वेकिंग अप, उसके बाद देन इवनिंग टी आई विल हैव. उसके बाद देन अगेन आई स्टार्ट टू स्टडी करने के बाद पे आई विल हैव डिनर अराउंड 7-8 और समथिंग, एंड आफ्टर दैट आई विल जस्ट स्लीप. उसके बाद मैं सो जाती थी. देन अगेन ये सेम रूटीन आई फॉलोड फॉर 3 months व्हेन आई वाज इन PG. उसके बाद में बट व्हेन आई इनिशियली स्टार्टेड माय प्रिपरेशन लाइक फ्रेशली आउट ऑफ यूनिवर्सिटी, व्हेन आई वाज गोइंग टू कोचिंग, उस समय में माय होल रूटीन अलग था. आप लोगों का भी ऐसा होगा. एग्ज़ाम का हर फेज़ में डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेवल पे है आपका प्रिपरेशन. तो उस लेवल पे आइडियल रूटीन जो चेंज होते जाएगा. लाइक स्लोली यू विल नो कि आप कब पढ़ना पसंद करते हो. अकॉर्डिंगली होगा सब कुछ. जब कोचिंग क्लास हम ज्वाइन किया था जस्ट यूनिवर्सिटी से पास होके, उस समय में माय रूटीन वाज डिफरेंट. वहाँ पे आई रिमेम्बर देखो आइडिया तो हमको पहले से था कि कॉलेज यूनिवर्सिटी डेज से आई हैड दिस, ये फैक्ट तो मुझे पता था कि आई एम नॉट समवन हु विल स्टडी इन द नाइट. पहले से इट वाज एन ओल्ड थिंग एंड आई न्यू अबाउट इट. तो कॉलेज हमारा जो कोचिंग का टाइम होता था सुबह होता था. अराउंड 11:30 और समथिंग, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग. प्रोबेबली गलत भी हो सकता है क्योंकि अभी
ये 2017 का बात है, व्हेन आई वाज गोइंग कोचिंग, तो आई डोंट रिमेम्बर मच। तो जितना तक याद है, एंड बिफोर लंच था वो, तो वहाँ पे लंच कोचिंग में हम जाएगा सुबह, जाके पूरा नो 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 क्योंकि इट यूज टू स्टार्ट फ्रॉम 9 और समथिंग, और 12:30 को जाके ख़त्म होता था लंच टाइम में। फिर आई विल रीच होम एंड आफ्टर दैट आई विल हैव माई लंच। उसके बाद पे हम फिर से सो जाते हैं। आफ्टरनून को आई ऑलवेज यूज टू स्लीप। देन इन द इवनिंग को, क्योंकि आई वॉज जस्ट लर्निंग, इट वॉज माई इनिशियल फेज, अ बिगिनर आई वॉज, तो आई विल जस्ट क्या मटीरियल दिया है, क्या है, बिसाइड्स आई वॉज स्टार्टिंग माई NCERT टेक्स्ट बुक्स। तो शाम को हम फिर से थोड़ा सा पढ़ेगा, हार्डली अराउंड 2 आवर्स और समथिंग पढ़ेगा, देन आई विल अगेन स्लीप। तो वही साइकिल चलता था मेरा, क्योंकि आई वॉज थिंकिंग कि आगे जो भी है कोचिंग का और घर में खुद बेसिक्स को भी कंप्लीट कर लेगा, देन कोचिंग से भी जो नोट्स मिल रहा है थोड़ा धीरे धीरे करके जाते करेगा बोल के। दिस वॉज माई आइडियल रूटीन, वही चला मेरा पूरा। देन उसके बाद में व्हेन आई क्लियर प्रीलिम, आई टोल्ड यू कि क्या रूटीन था करके। बट येस, आप जब बिगिनर हो, जब आप यू आर न्यूली स्टार्टिंग द प्रिपरेशन, डू नॉट वरी मच अबाउट हाउ मेनी आवर्स यू हैव स्टडीड, डू नॉट थिंक अबाउट इट। क्योंकि इनिशियल फेज में इवन एक दिन में अगर आप 30 मिनट्स 1 घंटा भी पढ़ेगा ना विद कंसंट्रेशन, देयर इज ऑल्सो इनफ व्हेन इट इज ऑन इनिशियल स्टेज, आई एम सेइंग। हाँ, फिर व्हेन एडवर्टाइजमेंट कम्स ना, उसमें थोड़ा गियर अप हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, थोड़ा गियर अप होगा, थोड़ा आपको चीज़ें समझ में आएगा, थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। देन उसके बाद में जब प्रीलिम का जब डेट आने वाला होगा, जो अभी आप लोग का फेज है, हाँ उसमें तो टाइम यू कैन नॉट वेस्ट योर टाइम्स में, सिर्फ पढ़ना है। उसके बाद में व्हेन यू क्लियर प्रीलिम, उसके बाद फिर अलग लेवल 3 महीना तो कैसा चला जाएगा, यू वोंट इवन रियलाइज। तो आइडियल रूटीन का मैंने आपको बता दिया है, वही था मेरा। एंड येस, व्हेन आई फिनिश्ड कोचिंग माई कोर्सेस, देन उसमें सेम था जो मेंस वाला था। सुबह हम उठेगा, सुबह से पढ़ेगा, ब्रेकफास्ट करेगा, देन अगेन आई विल स्टडी, देन आई विल हैव लंच, देन फिर उसके बाद सो जाएगा, शाम को उठेगा, फिर थोड़ा सा वॉक करने चला जाएगा, देन आई विल कम बैक। उसके बाद में चाय कप लेके फिर से आई विल स्टार्ट टू स्टडी, एंड अराउंड 8 का बाद तो हम खाना खा के सो जाता था। इट वॉज माई रूटीन। एंड येस, आफ्टर फिर क्लियरिंग मेंस, जो वाइवा के लिए 1 मंथ मिलता है आपको, वो 1 मंथ में 1 महीना में फिजिकली भी आपको फिजिकल टेस्ट, बिकॉज आई ऑप्टेड फॉर DSP इन माई सेकेंड प्रेफरेंस ना, फर्स्ट CO सेकेंड DSP डाला था हम जो, तो फिजिकल टेस्ट होता है। इफ़ यू हैव अप्लाइड फॉर DSP, देन आपको फिजिकल टेस्ट के लिए अपेयर करना पड़ता है। तो व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, वो 3 महीना में भी एंड उससे पहले भी, व्हेन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन, बिकॉज बॉडी का मूवमेंट भी बहुत कम होता है। आई गेन लोअर ऑफ वेट्स ना, स्पेशली वेट गेन तो बहुत किया है, स्पेशली ड्यूरिंग मेंस समय में, वो 3 महीना में। बिकॉज व्हेन यू स्टडी ना, बहुत ग्लूकोज एनर्जी जाता है आपका, देन यू टेंड टू ईट मोर, जब ब्रेन यूज़ हो रहा होता है ना, तो इसीलिए आई गेन लॉट ऑफ वेट। तो आई हैड 1 मंथ, उसी बीच में मेरा रूटीन पूरा ऐसा था कि होल डे आई विल बी रिविजनिंग इन द सेंस कि क्या हमको पूछ सकता है। एंड आई वॉज फोकसिंग मोर ऑन माई डिस्ट्रिक्ट, कि वहाँ में डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछेगा, और हुआ भी है। दे आस्क मी अबाउट माई डिस्ट्रिक्ट, माई ट्राइब एंड लॉट ऑफ थिंग्स which was related to my district, अपर सुबनसिरी। तो वो हुआ। तो ऐसा करके आई विल मेक अनदर वीडियो समडे ना, ये वाइवा में हमको क्या क्या पूछा था, कैसा होता है माहौल करके, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। सो लाइक आई वाज सेइंग, जब मेंस क्लियर होने के बाद वो 1 महीना में तो फिजिकल एक्टिविटी, आई हैड टू डू लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। सुबह 5 बजे से उठ के, आई हैव अप्लाई, एक ट्रेनर भी रखा था, सुबह 5 बजे से उठ के आई विल डू। फिर वहाँ से आने के बाद में इतना थक जाता था। IG पार्क में 2-3 घंटा एक्सरसाइज होता था, उसमें बहुत सा साथ में जो क्वालिफाइड किया वाला लोग था ग्रुप में, हम लोग दोस्त हु हैव अप्लाइड फॉर DSP सब साथ में करता था प्रैक्टिस। उसमें रनिंग प्रैक्टिस, जंपिंग, ये सब होता है ना, लॉन्ग जंप, हाई जंप, ये सब प्रैक्टिस करेगा। देन अगेन आई विल कम बैक, फिर उसमें फिर नहा के फिर से आई विल स्टार्ट टू स्टडी करेंट अफेयर, अभी क्या चल रहा है। एंड आई विल ट्राई टू नो, मेरा खुद का ओपिनियन कैसा करके बिल्ड करना है, वो सब होगा। देन अगेन हम फिर उसके बाद में या फिर वो कर रहा होगा, और एल्स हम मॉक टेस्ट में जा रहे हैं। बार बार कोचिंग इंस्टीट्यूट में मॉक टेस्ट में आई वाज अप्लाइंग, दे रिकॉर्ड योर वीडियो, दे विल गिव यू, ऐसा करके आई वाज अटेंडिंग लॉट ऑफ मॉक टेस्ट उस समय में वाइवा के लिए।
तो डेट वॉज माई रूटीन। और उसमें भी वाइवा टाइम में भी वो फेज़ में भी अगेन आई वॉज स्लीपिंग बिफोर 8-9 एंड फिर से सुबह उठ जाता था, थोड़ा पढ़ाई करेगा, देन आई रन फॉर फिजिकल एक्टिविटी, वो रहा था रूटीन। हाउ टू डील विद इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, समवन हैज़ एक्चुअली आस्क्ड मी अबाउट द बुक। तो environment and ecology को तो I told you in my earlier video that I studied this one NCERT साइंस सब्जेक्ट till class 8, वहाँ भी थोड़ा आइडिया हो गया था। देन उसके बाद में आई डायरेक्टली जम्प टू शंकर IAS बुक। आपको एक मिलेगा ग्रीन कलर का, उसका कवर होगा, क्या पता अभी चेंज भी हो गया होगा, बट आई रेड शंकर IAS फॉर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एंड आई डिड नॉट चेंज द बुक। वही बुक को फर्स्ट से लेके लास्ट तक फॉर माई मेंस एंड फॉर माई प्रीलिम उसी को ही बार बार रिपीटेशन, उसी को ही रिविजन करके वहाँ से हम पढ़ाई किए। एंड आई डू नॉट मेक नोट्स, वो हम नहीं सकते नोट्स बनाने के लिए, इट्स आउट ऑफ माई थिंग। तो कभी आई ट्राइड बट आई नेवर मेड नोट्स। तो बुक्स ही मेरा नोट्स है, वहाँ से हम अंडरलाइन करते बहुत, आई यूज्ड टू डू अंडरलाइन हाईलाइट करके पढ़ता है, बुक का ही बगल में हम कुछ ना कुछ लिख लेगा, ऐसा करके था। तो फॉर शंकर IAS इज़ द आंसर फॉर इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। बुक लिस्ट इट्स वेरी कॉमन, जैसे कि पॉलिटी के लिए अपना लक्ष्मीकांत हो गया, शंकर IAS फॉर इकोलॉजी जो हम लोग सब पढ़ते हैं, और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम को आई रेड, ऐसा कुछ कुछ। आई डू नॉट रिमेंबर ऑल ऑफ देम बट आई विल ट्राई टू मेक अ शॉर्ट वीडियो फॉर द बुक लिस्ट। एंड येस आई वांट टू मेंशन, समवन हैज़ आस्क्ड मी कि बिगिनर्स के लिए क्या बुक होगा। सी, बिगिनर्स के लिए हो या पूरा प्रोफेशनल हो जाओ, बहुत प्रो बन जाने से भी आपको बुक्स सेम ही होगा, वो कोई स्टेज अलग अलग ऐसा बोल के नहीं है। सो डू नॉट ब्रिंग दिस कंसेप्ट इन योर माइंड कि बिगिनर्स के लिए अलग बुक होगा, देन जो सीनियर एस्पिरेंट्स लोग है उनका अलग वाला होगा बोल के, ऐसा नहीं है। बुक इज सेम फॉर ऑल। I will don't worry, I will make a short video for because I will have to search कि मैंने कौन सा वाला बुक लिया था, because all my books and materials are with my younger brother. Like I said, he is also preparing, तो उसके पास होगा, I have to ask him. Next question is coaching required to clear the exam, or can someone clear the exam without knocking the door of coaching institutes? My answer is yes. Many of my friends, they never joined coaching institutes, never, and self study किया है. In my case also, you should know कि when I joined the coaching class because I had a very little idea. तो कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए मुझे जाना पड़ा। और अभी का जैसा है, लॉट ऑफ इंफॉर्मेशनल वीडियो इस अवेलेबल नहीं था उस समय में, अभी जैसा है ना। तो इसीलिए आई हैड टू गो टू अंडरस्टैंड द होल गेम। वो था, वो भी पुराना समय में, व्हेन एग्जाम पैटर्न वाज डिफरेंट, उस समय में आई वेंट देयर। बट दिस टाइम जब UPSC पैटर्न का आ गया था ना, आई डिड नॉट ज्वाइन कोचिंग, बट येस आई ज्वाइंड आफ्टर क्लियरिंग द प्रीलिम। उसके बीच में जो था, I joined coaching classes for practicing my answer writing करने के लिए I joined mock class, ये सब इंटरव्यू के लिए I joined, वाइवा के लिए, then for टेस्ट सीरीज के लिए मैंने ज्वाइन किया। I did not go मैंने क्लास नहीं लिया अपना, ना ऑप्शनल के लिए लिया, ना जनरल स्टडीज़ के लिए आई डिड नॉट टेक। मैंने खुद से सेल्फ स्टडी किया है फॉर जब लास्ट टाइम एग्जाम हुआ था 2019 को। सो डेफिनेटली, एंड आई विल नॉट कंसिडर माई सेल्फ एज कि हम कोचिंग गया था बोल के। इन माई केस आई वुड से हम नहीं गया बोलने से होगा। ओके, फॉर दिस न्यू पैटर्न आई खुद से हम स्टडी किए। बट आई एम रिपीटिंग अगेन, आई जॉइन मेनी कोचिंग क्लासेस जस्ट टू प्रैक्टिस मॉक टेस्ट, ये सबको उसमें इनरोल किए खुद को। बट आई डिड नॉट गो, मतलब नहीं गया है कोचिंग, वो क्लासेस सब्जेक्ट ये सबको कंसेप्ट को पढ़ने के लिए आई डिड नॉट गो। सो डू नॉट वरी, यू डू नॉट नीड टू गो कोचिंग। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो कोचिंग जाता है ना, वो क्लियर नहीं करता है। एंड पीपल हु आर मतलब खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हैं ना, डूइंग सेल्फ स्टडी, दे यूजुअली क्लियर द एग्जाम। सो डू नॉट वरी। It is also worth mentioning that my younger brother who is preparing, इस बार उसको भी कोचिंग जाने नहीं दिया। I asked him but he said कि he doesn't want to, and I also felt कि जाने का ज़रूरत नहीं है करके। तो
You see, my sibling is also not going coaching. तो मेरा जवाब है yes, it is required or also not required. It depends on your need. लेकिन ना मुझे ऐसा लगता है कि कोचिंग जाने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि कंपटीशन लेवल को पता चल जाता है. इट मोटिवेट्स यू. अगला सवाल है मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट फॉर प्रीलिम. इसी से ही रिलेटेड जो सेम लाइन में और एक सवाल हमको पूछा गया था जो दोनों का आंसर सेम लग रहा है हमको. दूसरा सवाल ये था कि विच सब्जेक्ट कैन बी स्किप्ड. मीनिंग तो वही हो रहा है कि आप इधर बताइए कि जो सबसे स्कोरिंग वाला सब्जेक्ट है और दूसरा कि कौन सा सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं. इन सिविल सर्विस एग्जाम यू कैन नॉट स्किप इवन अ सिंगल सब्जेक्ट. वो तो आप छोड़ ही दीजिए कि मैं इसको कैसे करके स्किप करूं. एंड कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं होता जो बहुत स्कोरिंग है करके. हर सब इंटरलिंक्ड होता है और क्वेश्चनियर मेक श्योर करता है कि उसमें हर सब्जेक्ट से जो मेंशन है सिलेबस है सबको साथ में आ जाना है करके. आई मीन एवरी सब्जेक्ट हैज़ टू रिप्रेजेंट इटसेल्फ. सो वो सोचना एक्चुअली आई एम थिंकिंग कि ये सोचना ही गलत है कि कौन सा सब्जेक्ट स्कोरिंग है. ये इट रिफ्लेक्ट्स कि यू आर ऑन वेरी रॉन्ग डायरेक्शन. सो आप इसको ये सोचना तो बंद ही कर दो. यू कैन नॉट स्किप इवन अ सिंगल सब्जेक्ट. ऑल सब्जेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट.